Malwares. Malware is a piece of software that is designed to do something malicious or unwanted. It is a general term that used to represent a wide range of malicious software such as virus, worm, or Trojan. Now let's have a look types of malware. There are some different types of malware includes virus, worm, spyware, Trojans. Now it is very important to note that one piece of malware may combine many elements together and hence it could be categorized in more than one category. So now let's have a look कि ये सारे viruses, सारे worms, ये सारे trojans कैसे काम करते हैं. So let us start with the virus thing. This category of malware spreads when an infected file is executed or started. It therefore is a dependent on user interaction to spread. Next is here, that is worm. A worm is a self-replicating program that exploits system vulnerabilities and weakness to spread itself onto other computers. Therefore it spreads irrespective of the user interaction. मीन्स आपने एक बार कहीं क्लिक कर दिया या इसने किसी ना किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया और ये ऑटोमेटिकली आपके पूरे सिस्टम में स्प्रेड हो जाएगा. दैट इज समथिंग कॉल्ड एज वर्म. द नेक्स्ट इज हियर, दैट इज स्पाईवेयर. इट इज ए प्रोग्राम डेवलप्ड विद द सोल intention of gathering personal information. The information could be leaked in form of files, keystroke records, screenshots, etc. These may refer to trojans, keyloggers और backdoors. आपके सिस्टम में अगर कोई भी malicious software कुछ भी spy कर रहा है आप पर, then that malicious software will come under the category of spyware. And there are some examples like trojans, keyloggers और backdoors. ये सभी के सभी आपके spywares ही होते हैं. Next is here, that is Trojan. Now Trojan are the programs which come in your computer behind an trusted application without your permission and gives up the control of your computer to the attacker. आपको लगता है कि जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हो, जो फाइल आपके सिस्टम में आई है वो ट्रस्टेड है, पर कई बार क्या होता है उन्हीं ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर्स के पीछे आपके मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी छुपे होते हैं. एंड द मोमेंट आपने उनको एग्जीक्यूट किया, आपके सिस्टम में ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं और आपके सिस्टम का रिमोट कंट्रोल किसी भी यूज़र को रिमोटली दे सकते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड एज ट्रोजन्स. नाउ लेट अस रीड अबाउट वायरसेस. अपने खुद के वायरस आप कैसे बना सकते हो, वायरसेस कैसे काम करते हैं, वही सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ. सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज़ बैच प्रोग्रामिंग. एक्चुअली यहाँ पर हम कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं करने वाले हैं. ये सब काम हम विंडोज़ के इनबिल्ट कमांड से यूज़ करेंगे by using batch programming. अब ये बैच प्रोग्रामिंग होती क्या है, लेट्स हैव अ लुक. अब जो भी कमांड्स आप टाइप करते हो कमांड प्रॉम्प्ट पर या CMD पर, अगर मैं उन्हीं सारे कमांड्स को सेव कर दूं अपने नोटपैड में विद एक्सटेंशन .bat, राइट, वो सारी कमांड्स आपकी एक साथ एग्जीक्यूट हो सकती हैं ऑन ए सिंगल एग्जीक्यूशन. द मोमेंट आपने एग्जीक्यूट किया, आपकी वो सारी कमांड्स एक साथ से एग्जीक्यूट हो जाएंगी, राइट. And that concept is called as batch programming. Let's have a look कि how it works. ये batch programming होती क्या है, एक बार इसका एग्जाम्पल देखते हैं. अगर मैं यहाँ पर CMD पर जाता हूँ और टाइप करता हूँ स्टार्ट स्पेस notepad.exe, इससे क्या होगा, नोटपैड ओपन हो चुका है. इफ आई एम टाइपिंग हेयर स्टार्ट स्पेस mspaint.exe, इससे क्या होगा, MS Paint ओपन हो चुका है. But now what if I'll type here start space calci.exe, इससे क्या होगा, calci ओपन हो चुका है. But now you must have seen कि सब काम मैं वन बाय वन कमांड एग्जीक्यूट कर रहा था और वन बाय वन सारी कमांड्स आपको रिजल्ट शो कर रही थी. Now what I want, अगर मैं इन ए सिंगल एग्जीक्यूशन ये सारी की सारी कमांड्स को रन करना चाहता हूँ, in that case what I'll do, let me increase the font size first. I'll type all the commands as it is on notepad as well. वो सारी कमांड्स को मैं एज इट इज टाइप कर चुका हूं नोटपैड पर. नाउ आई विल सेव द नोटपैड फाइल एनीवेयर विद एनी नेम. लेट अस assume on the desktop with any name. Let us say name is start, but extension would be .bat.
Make sure that extension I have given here .bat. Click on save. The moment आपने save पे click किया, you can see on the desktop आपके पास यहाँ पर एक नई फाइल आ चुकी है जिसका आइकन कुछ ऐसा दिखता है. एंड आई बिलीव कि आइकन आपने पहले भी कई बार देखा होगा. बट नाउ द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस आइकन ऑन दिस फाइल, देखते हैं क्या होता है. ऑन ए सिंगल एग्जीक्यूशन आपकी वो सारी की सारी कमांड्स एग्जीक्यूट हो चुकी हैं. आपका एमएस पेंट, आपका कैल्सी, आपका नोटपैड एंड सीएमडी, वो सारी कमांड्स आपकी सिंगल एग्जीक्यूशन में कंप्लीट हो चुकी हैं. राइट. एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज बैच प्रोग्रामिंग. गॉट इट. बट आपको लग रहा होगा कि चलो अच्छी बात है, हमने बैच प्रोग्रामिंग की, पर इसका वायरस कैसे बनेगा. आपने नोटिस किया कि जैसे ही मैं स्टार्ट फाइल पर क्लिक करता हूँ, ये सारी फाइल्स आपकी एक एक कर कर एग्जीक्यूट हो जाती हैं. अगर इसकी जगह कोई वायरस होता वो क्या करता, यही काम वो बार बार से रिपीट करता. यस. एंड आई बिलीव यू मस्ट बी नोइंग कि अगर आपका कोई वायरस है या अगर आपका कोई भी काम बार बार से रिपीट हो रहा है, तो बार बार से करने के लिए प्रोग्रामिंग में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, लूप्स. राइट. और बैच में लूप लगाना इज वेरी इजी. यू नो, लग गया लूप. बैच में लूप लगाना इतना आसान होता है. सबसे पहले मैंने यहाँ पर पॉइंट ऑफ रिमेम्बरेंस डिफाइन किया और उसके बाद गो टू कर दिया उस पॉइंट ऑफ रिमेम्बरेंस पर. बट मेक श्योर दैट दैट पॉइंट ऑफ रिमेम्बरेंस, दैट लूप इज नॉट ए कीवर्ड, इट इज ए वेरिएबल. यू कैन टाइप हियर एनीथिंग. This will work as well. Save this file. Now execute on this file. और आप ध्यान से देखना क्या होगा. आप देख रहे हो क्या हो रहा है, जादू सा हो रहा है. CMD ओपन हो रहा है अपने आप, कैल्सी ओपन हो रहा है, एमएस पेंट ओपन हो रहा है. आप देख सकते हो कितना फास्टली ये काम कर रहा है. और एक टाइम ऐसा आएगा कि सिस्टम हैंग हो जाएगा, यहाँ पर कुछ एरर्स भी आएंगे, एप्लीकेशन एरर, उसका बफर ओवरफ्लो हो जाएगा और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ही सिस्टम अपने आप से शट डाउन भी हो जाए. बट आपको समझ आए कि वायरसेस काम कैसे करते हैं. That is an example of virus, and that is a famous example of batch programming, right? This concept is something called as batch programming. और आप देख सकते हो अभी भी ये सिस्टम्स खोल रहा है और मेरे सामने कुछ एरर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं. फेल्ड, रन टाइम एरर और एप्लीकेशन एरर, और हो सकता है कुछ टाइम बाद अपने आप से शट डाउन भी हो जाए. नाउ लेट्स हैव अ लुक सम मोर वायरसेस. एक एग्जांपल देखते हैं. अगर आप ध्यान से देखें, if I go to run and type their notepad, it is working very well. If I type here MS Paint, it is working very well. And if I type here CMD, it is also working very well. Let us check Kelsey, it is also working very well. Now आपको पता होगा कि अगर मेरे सिस्टम में सारी की सारी एप्लीकेशंस काम कर रही हैं, तो इन सभी एप्लीकेशंस के पीछे कोई ना कोई EXE रिस्पॉन्सिबल होंगी जो इन्हें एग्जीक्यूट कर रही हैं. Now what if I'll create an virus जो ये सारी के सारी EXEs को करप्ट कर दे, तो क्या ये एप्लीकेशन काम करेंगी? नहीं करेंगी. एग्जैक्टली. तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा वायरस जो आपके सिस्टम की सारी EXEs की एसोसिएशन चेंज कर देगा, उन्हें करप्ट कर देगा और आपके सिस्टम की EXEs को समझ ही नहीं आएगा कि वो कैसे ओपन हो और कैसे एग्जीक्यूट करें. तो वायरस इज़ वेरी सिंपल एंड वायरस इज़ ASOC. ASOC स्टैंड फॉर एसोसिएशन स्पेस .exe, या वो एक्सटेंशन जो आपको चेंज करनी है इज इक्वल टू एनीथिंग. लेट अस assume सुलभ and click on save. Save it anywhere. Let us say on desktop with any name. Let us assume virus. Extension would be .bat. Make sure that फाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है. आपके डेस्कटॉप पर एक नई फाइल आ चुकी है विद द नेम ऑफ वायरस. I'll execute this virus और आप लोग ध्यान से देखना क्या होगा. एग्जीक्यूट किया, कोई एरर नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, कुछ पता नहीं चला. बट नाउ लेट अस ट्राई टू ओपन द नोटपैड. I got an error message. Windows cannot open this file. Let us try to open MS Paint. Same error message. Windows cannot open this file. CMD. Same error. Kelsey. Same error. एक्चुअली मेरे सिस्टम की सारी EXEs को समझ ही नहीं आ रहा कि वो कैसे ओपन हो. राइट. एक सिंगल कमांड ने आपके सिस्टम की सारी EXEs की एसोसिएशन चेंज कर दी. और आई बिलीव कि आपको पता होगा कि आपके सिस्टम में सब कुछ EXEs होती हैं. एनी वेब ब्राउज़र, एनी मीडिया प्लेयर, एनी गेम, एवरीथिंग इज EXE.
अगर exe आपके काम नहीं करेगी तो आपके सिस्टम में कुछ काम नहीं करेगा अच्छे से, राइट। एंड फ्रेंड्स, आई सजेस्ट यू कि अगर आप कुछ भी ऐसा ट्राई करते हो, ऑलवेज ट्राई इन द वर्चुअल मशीन, डोंट फॉरगेट इट। ऐसा हो सकता है कि कोई मेलिशियस फाइल बनाते हुए आपकी मेन मशीन करप्ट हो जाए, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाए, एंड वी डू नॉट वांट टू क्रैश आवर मेन मशीन। तो इसलिए ऑलवेज ट्राई इन द वर्चुअल मशीन कि अगर कुछ भी आपका करप्ट होता है, दैट विल पुट ऑल द बैड इफेक्ट्स ओनली ऑन द वर्चुअल मशीन, नॉट ऑन द मेन मशीन, राइट। तो आपके सामने यहाँ पर सेम एरर आ चुका है। अब मान लीजिए अगर आपको इसको ठीक करना तो क्या करोगे? उस केस में आपको इसकी जेन्युइन एसोसिएशन वापस करनी होगी, एंड ओरिजिनली .exe इज एसोसिएटेड विद the exe file. Originally .exe is associated with the exe file. I'll save this file. Let us assume with the name of patch. Extension is again .bat. File is saved on the desktop here. Patch आपके सामने है, पैच पे क्लिक किया, सिस्टम ठीक हो जाएगा। Let's have a look. Kelsey is working, MS Paint is working, and CMD is working, right? तो ये आपका वो वायरस है जो exe को क्रैश करता है, और ये आपका वो पैच है जो उसे ठीक करता है। पर आपको लग रहा होगा कि मुझे कैसे पता चला कि .exe की ओरिजिनल एसोसिएशन इज exe फाइल, राइट। ये काफ़ी ईजी है और आप भी पता लगा सकते हो, और ये सब कुछ मुझे पता चला था CMD से ही। मैंने क्या किया, मैं CMD पर गया और यहां पर जाके टाइप कर दिया assoc। द मोमेंट आप assoc टाइप करोगे, आपके पास वो सारी की सारी एक्सटेंशन की एसोसिएशन आ जाएंगी जो भी आपकी एक्सटेंशन के साथ एसोसिएटेड है, लाइक दिस। You can see I have got lots of associations, but now what if I want to know any particular extension association? Then in that case आपको करना क्या है, टाइप assoc स्पेस आपकी वो एक्सटेंशन जिसकी भी एसोसिएशन आपको पता लगानी है, let us say .exe। the moment you will execute this command, आपके पास उसी पर्टिकुलर कमांड की एसोसिएशन आ जाएगी। now what if I'll type here assoc space .jpg, I got here .jpg associated with jpeg file. What if I'll type here assoc space .rar? What do you think? Exactly, it is WinRAR, right? So that is something called as assoc command. Now let's move ahead. Again there are lots of commands, lots of viruses that you can create. Example देखते हैं। Again let's come to CMD first. I'm on the CMD. Again there is a command msg. What it does actually, if you want to display any message as a pop-up on the user screen, you can use this command msg space asterisk, that is star, and space your message. Let us say you're hacked. What this command will do, it will generate a pop-up message on the victim machine. A text written on the message is you're hacked, like this, right? Will display you the username as well as the date and time. This is something called as msg, and the same command can be written on the notepad in a loop as well, right? तो ये सारी कमांड्स आपकी ऐसे ही काम करती हैं जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये सब कुछ मैं विंडोज़ के कमांड से यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर काफ़ी सारे यूज़र्स ऐसे होंगे जिन्हें विंडोज़ के इनबिल्ट कमांड्स यूज़ करना नहीं आता। तो डो नॉट वरी अबाउट दिस। अगर आपको कोई कमांड नहीं आती, व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली टाइप हेल्प ऑन CMD. यू कैन आस्क हेल्प फ्रॉम CMD ओनली. CMD विल हेल्प यू आउट. टाइप हेल्प, क्लिक एंटर. विंडोज में आपकी जितनी भी कमांड्स एग्जिस्ट करती हैं विद डिस्क्रिप्शन, आपकी वो सारी कमांड्स आपके सामने आ जाएंगी. बट अगेन यू मस्ट हैव सीन हियर, बहुत सारी कमांड्स हमारे सामने आ चुकी हैं. Now what if you want to check any particular command? In that case what you can do, type the command name. Let us assume you do not know how to use copy command. उस केस में करना क्या होगा, type the command name, that is copy, COPY space slash question mark. Yes, type the command name, that is copy space slash question mark. The moment आपने ये टाइप किया, एंटर किया, आपके पास इस कमांड का एग्जैक्ट सिंटेक्स, सारे के सारे ऑप्शंस और उनका डिस्क्रिप्शन आपके सामने होगा, लाइक दिस, कि कौन सा ऑप्शन किस काम आता है, कौन कौन से सोर्सेज आप यूज कर सकते हो, एंड व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ कमांड एंड व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑप्शन, राइट.
लाइक यू मस्ट हैव सीन, मैं आपके सामने काफी बार एक कमांड यूज कर रहा हूं दैट इज CLS. अगेन यहां पर भी इसका एक रीजन है और ये आप चेक कर सकते हो, दैट इज क्लियर द स्क्रीन, एवरीथिंग कैन बी नोन फ्रॉम द CMD ओनली, राइट. इसके साथ साथ इवन आप विंडोज रजिस्ट्री को भी CMD से हैंडल कर सकते हो. देयर इज अ कमांड दैट इज reg. नाउ व्हाट इफ यू डू नॉट नो हाउ टू यूज reg कमांड, देन टाइप द कमांड नेम reg /?. आपके पास reg फाइल के सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे कि reg के साथ आप क्या क्या यूज कर सकते हो. नाउ लेट अस सी, देयर इज एन एग्जांपल reg @. आपको एक की ऐड करनी है विंडोज रजिस्ट्री में एंड यू डू नॉट नो हाउ टू यूज reg @. व्हाट यू विल डू, टाइप reg /@/. आपके पास reg @add का पूरा सिंटेक्स आ जाएगा विद एग्जांपल एंड विद ऑल द ऑप्शंस कि कैसे कैसे काम होते हैं, राइट. और अगर आपने एक बार ये सीख लिया तो आप विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट से ही विंडोज रजिस्ट्री को हैंडल कर पाओगे. और आपको पता ही है कि आप विंडोज रजिस्ट्री से आप क्या क्या कर सकते हो, लाइक टास्क मैनेजर एनेबल डिसेबल करना, CMD एनेबल डिसेबल करना, और ये सब काम आप अपनी बैच फाइल्स क्रिएट करके भी कर सकते हो. तो यानी कि अल्टीमेटली आपने एक मैलिशियस फाइल क्रिएट कर दी जो आपकी रजिस्ट्रीज को हैंडल कर रहा है बाय यूजिंग बैच प्रोग्रामिंग. सो दिस आर लॉजिक हाउ वायरसेस आर वर्किंग, right. So now let us have a look on the some more viruses. Like if you will type on the notepad md /hacker cd /hacker, it will create a hacker folder on the same location. Now what if I'll put the same virus inside a loop, और उसके साथ में मैंने यहाँ पर एक फोल्डर भी कॉपी कर दिया that is system32. Now it will create a infinite loop inside one another and it also create a replica of system32 folder in each hacker folder, right. अगेन आपके सिस्टम का बफर ओवरफ्लो हो सकता है और आपकी हार्ड डिस्क भी क्रैश हो सकती है. दैट इज अनदर वायरस. लेट्स हैव अ लुक ऑन अनदर वायरस. व्हाट इफ आई टाइप हियर अ टेक्स्ट लाइक दिस, it will consume whole memory and CPU uses of your system, right. And in this code actually we are recursively calling command prompt which is in an infinite loop, right. Again it is nothing, it is a virus. So these are the viruses that you can create by your own by using batch programming. Now next is convert bat into exe. इसका क्या बेनिफिट है बैच टू exe कन्वर्टर का, अगर ये देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी ये होता क्या है. bat to exe converter can be used to make bat files output invisible as well as for protection of batch files code, right. Like अभी तक जो हमने एग्जाम्पल देखा आपने नोटिस किया होगा कि हमें कोई कोड दिखा नहीं, हमें कहीं पर कोई एग्जीक्यूशन नहीं दिखी. बट नाउ लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल. नाउ व्हाट इफ आई क्रिएट अ वायरस हियर इन अ नोटपैड. आई टाइप हियर md hack cd hack and let us put this virus in a loop. आपको समझ आ रहा है कोड क्या करेगा. एक हैक नाम से फोल्डर बनाएगा, उसके बाद उस हैक नाम के फोल्डर के अंदर एंटर करेगा और इसको मैंने लूप में डाल दिया. ये इन्फिनिट लूप में काम करता जाएगा. तो लेट अस सेव दिस फोल्डर, सेव दिस फाइल विद बैच एक्सटेंशन ऑन डेस्कटॉप ओनली. उसको बंद किया, फोल्डर मेरे पास आ चुका है. लेट अस एग्जीक्यूट दिस फाइल. इसको एग्जीक्यूट करते हैं आप देख रहे हो कि मेरे सामने एक CMD ओपन हो चुका है. मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ कमांड्स यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं. उसके साथ साथ अगर मैं इस फोल्डर फाइल को राइट क्लिक करता हूँ, एडिट पे क्लिक करता हूँ, मैं इसका कोड भी यहाँ से देख सकता हूँ. पर इसका यहाँ पर रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पर हैक नाम से फोल्डर बन चुका है, उसके अंदर एक और हैक है, एक और हैक है, एक और हैक है, एक और हैक है, राइट. पर मेरा मेन मोटिव आपको यहाँ पर यह दिखाने का था कि ये बैच फाइल अगर ये बैच रहती है तो इसका कोड आपको दिख सकता है, प्लस आपको इसकी प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन देख सकती है कि ये कहाँ पर कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है. बट नाउ इफ आई यूज हियर बैट टू exe कन्वर्टर दैट विल नॉट अलाउ मी टू चेक द कोड ऑफ दिस एप्लीकेशन. और उसके साथ साथ उसका एक बेनिफिट और भी है कि वो आपको इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस को इनविजिबल कर देगा, उसको हाइड कर देगा. और इस काम को करने के लिए आई कैन यूज अ सॉफ्टवेयर दैट इज बैट टू exe कन्वर्टर. कैसे यूज करते हैं एक बार ये देखते हैं. लेट्स हैव अ लुक हियर. बैट टू exe कन्वर्टर आपको कैसे यूज करना है. सो दिस आर सॉफ्टवेयर जो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ. कैसे यूज करूंगा एग्जाम्पल देखते हैं.
So I got back to exe converter on my desktop. Open it. ओपन करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन है बैच फाइल को ब्राउज करने का. ब्राउज दिस बैच फाइल. लेट अस अज्यूम फोल्डर. ओपन. ऑटोमेटिकली करेगा क्या ये, एट द सेम लोकेशन विद द सेम नेम एक exe फाइल को भी सेव करने के लिए आपको अलाउ करेगा. साथ में ऑप्शन दिया विजिबिलिटी का. यू कैन क्लिक ऑन इनविजिबल एप्लीकेशन. ये एप्लीकेशन आपकी इनविजिबल हो जाएगी, दिखेगी नहीं कि एग्जीक्यूट कर रही है. एंड क्लिक ऑन कंपाइल. कंपाइल दिस वायरस. द मोमेंट आपने कंपाइल किया, कंपाइलिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी सेम लोकेशन पर एक exe फाइल आ चुकी है विद द सेम नेम. आप इसे रीनेम भी कर सकते हो. एक काम करते हैं, इस फोल्डर को डिलीट करते हैं. लेट अस एग्जीक्यूट दिस exe फाइल दिस टाइम. एग्जीक्यूट किया, कुछ विजिबल नहीं हुआ, कोई एरर कोई मैसेज कुछ नहीं आया, बट आप देख सकते हो कि एक फोल्डर आपका क्रिएट हो चुका है हैक नाम से, और अगेन इसका भी सेम काम है, राइट. सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज बैट टू exe converter. Now let's have a look on Trojans. What are Trojans? Trojans are malicious piece of code used to install hacking software on a target system and aid the hacker in gaining and retaining access to that system. This is something called as Trojans. Like example देखते हैं. I believe कि आप में से काफी लोगों ने ट्रॉय मूवी देखी होगी. आपको याद होगा ट्रॉय मूवी में क्या था. There were two countries, one was Greek, another was Troy. अब होता क्या था, जो ट्रॉय सिटी का किंग था या ट्रॉय सिटी का प्रिंस था, वो प्रिंस ग्रीक की प्रिंसेस को किडनैप करके ले आता था. अब ग्रीक्स वाले फायर हो जाते थे, ऐसे कैसे ले गए, हमारी प्रिंसेस है, उस पर हमारा हक है, कोई और कैसे ले गया. तो ग्रीक्स वाले करते क्या थे, ट्रॉय सिटी के ऊपर अटैक कर देते थे. बट ट्रॉय सिटी की जो बाउंड्रीज थी, उनके जो गेट्स थे वो काफी हाई थे, वो बार बार से अटैक करते थे और बार बार हार जाते थे. तो अल्टीमेटली ग्रीक्स वाले करते क्या है, काफी बड़ा वुडन हॉर्स क्रिएट करते हैं और उस वुडन हॉर्स के अंदर अपनी आर्मी के बेस्ट सोल्जर्स को हाइड कर देते हैं और वो वुडन हॉर्स गिफ्ट कर देते हैं ट्रॉय सिटी के किंग को. अब किंग को लगता है इट्स अ साइन ऑफ गॉड, हमें इसे अपनी सिटी के अंदर ले जाना चाहिए, इसकी पूजा वूजा करनी चाहिए. पर ट्रॉय सिटी के किंग की जो हायर अथॉरिटीज होती हैं उसे मना करती हैं कि ऐसा काम मत करो, इट कुड बी डेंजरस, बर्न इट हियर. पर किंग तो किंग है, वो सुनता नहीं किसी की. किंग करता है क्या, उस वुडन हॉर्स को अपनी सिटी के अंदर ले जाता है. शाम को उसकी पूजा वूजा करते हैं वो लोग, पार्टी वार्टी करते हैं और सो जाते हैं. सबके सोने के बाद उस वुडन हॉर्स के अंदर से आर्मी बाहर निकलती है और ट्रॉय सिटी पर अटैक कर देती है, राइट. सेम काम कुछ आपके साथ भी होता है. द मोमेंट आप गूगल पर गए, आपने टाइप कर दिया फुल वर्जन एंटीवायरस और फुल वर्जन गेम, आपके पास एक सॉफ्टवेयर आया, आपने उसे डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया. पर कई बार क्या होता है कि उसी सॉफ्टवेयर के पीछे कुछ मेलिशियस फाइल्स भी आपके सिस्टम में आ जाती हैं और आपको पता नहीं चलता कि वो कब आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गई और आपके सिस्टम का रिमोट कंट्रोल वो किसी को भी रिमोटली दे सकती हैं. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रोजन्स एक्चुअली. नाउ लेट्स हैव अ लुक की वर्किंग ऑफ ट्रोजन्स. ट्रोजन्स काम कैसे करते हैं. एज आई हैव टोल्ड यू, ट्रोजन्स कैन बी यूज्ड टू एक्सेस एनी रिमोट मशीन फ्रॉम एनीवेयर. नाउ लेट अस अज्यूम कि मैं एक अटैकर हूं और मुझे आपका सिस्टम एक्सेस करना है. तो इफ आई एम एक्सेसिंग योर सिस्टम, इन दैट केस अटैकर वुड बी क्लाइंट एंड सर्वर वुड बी विक्टिम. तो यहां पर अटैकर ने क्या किया, एक मैलिशियस कोड जनरेट किया और विक्टिम के पास सेंड कर दिया. विक्टिम ने उस मैलिशियस कोड को एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद विक्टिम की मशीन में ट्रोजन इंस्टॉल हो जाएगा. तो फ्रेंड्स, ये सब काम कैसे होता है, ये सब कुछ मैं आपको अभी डेमोस्ट्रेट करने वाला हूं, प्रैक्टिकली शो करने वाला हूं कि आप ट्रोजन्स का यूज कैसे कर सकते हो. इसके साथ में यहां पर काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बाइंडर्स. That is the concept of binders. Binder is a technique by using which you can bind or join multiple files right together. वो multiple file कुछ भी हो सकती है. It could be an image file, could be an exe, txt और pdf file. तो मैं आपको एक बार बताने वाला हूं कि how can you use binder to hide your server behind a trusted application. Like आपका जो ट्रोजन का सर्वर बनेगा उसको आप बाइंड कर सकते हो किसी भी ट्रस्टेड एप्लीकेशन के पीछे. That could be any antivirus, any image file or something like that, right? But now let us see what is the mode of transmission. आपको अपना ट्रोजन सेंड कैसे करना है विक्टिम के पास. So let's have a scenario here. There is an attacker and there is a victim. You can send your trojan anyhow to victim by using chat, email attachments, website downloads, physical drive or network share.
आपको एनी हाउ अपना ट्रोजन का सर्वर विक्टिम को गिफ्ट करना है, राइट। एक बार आपने उसे उसके सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद वो मशीन हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। पर यहां पर फ्रेंड्स एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स कनेक्शन। सो नाउ लेट्स हैव ए लुक कि रिवर्स कनेक्शन होता क्या है। अगेन देयर इज अ अटैकर एंड देयर इज अ विक्टिम। नाउ अटैकर इज रिक्वेस्टिंग ए रिक्वेस्ट फॉर कनेक्शन। उसने कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए एक रिक्वेस्ट जनरेट की। विक्टिम ने अपनी डिटेल्स को जनरेट किया और शो किया आई एम ओपन ऑन दिस पोर्ट नंबर एंड दीज आर माय डिटेल्स, और डिटेल्स को सेंड कर दिया अटैकर के पास। नाउ अटैकर विल यूज ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड ही इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद विक्टिम एंड अल्टीमेटली ही गॉट कनेक्टेड। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पर आज यही प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि आप ये सब काम कैसे कर सकते हो, ट्रोजन्स कैसे काम करते हैं और रिवर्स कनेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो लेट्स हैव ए लुक हियर। द ट्रोजन दैट वी कैन यूज हियर इज बीस्ट। एज यू लुक ऑन माय स्क्रीन ऑन माय डेस्कटॉप, एक यहां पर आइकन है एलियन जैसा, राइट। दिस इज अ सॉफ्टवेयर बीस्ट। इसी की हेल्प से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो किसी विक्टिम की मशीन को by using a concept of trojans. So let's have a look. Let me open it. So this is the interface of beast and the best part is आपके इसी beast में एक ऑप्शन होता है आपके सर्वर को बिल्डअप करने का। बाय डिफॉल्ट जो आपको ये फाइल मिली है दैट इज अ क्लाइंट फाइल, और आप इसी क्लाइंट फाइल से अपना सर्वर बिल्डअप कर सकते हो। कैसे करना है, लेट अस सी। क्लिक ऑन बिल्ड सर्वर। There is an option basic, right? और यहां पर आपको सिर्फ एक ही रेडियो बटन में क्लिक करना है, दैट इज रिवर्स कनेक्शन। फ्रेंड्स, जो मैं आपको ऑप्शन यहां पर दिखा रहा हूं, दीज आर द बेसिक नेसेसरी ऑप्शन जो जरूरी है, राइट। एंड आई एम शोइंग यू अ वेरी इजीएस्ट वे जिससे अपना सर्वर बिल्डअप कर सकते हो। तो यू नीड टू क्लिक ऑन रिवर्स कनेक्शन। नाउ कम टू नोटिफिकेशंस। नाउ इट इज आस्किंग फॉर आईपी एड्रेस। यहां पर आपको अपना आईपी एड्रेस एंटर करना है, अटैकर का आईपी एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपको अपना आईपी एड्रेस नहीं पता, डू नॉट वरी अबाउट दिस, क्लिक ऑन गेट आईपी। द मोमेंट आपने गेट आईपी पर क्लिक किया, बेस्ड ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस पिक कर लेगा और यहां पर फिलअप कर देगा। उसके बाद भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको स्टार्टअप पर पुटअप करना है, अगर आपको एंटीवायरस फायरवॉल किल करनी है, मिसलेनियस के ऑप्शंस हैं। आप चाहते हो कि इंस्टॉल होते ही वो सर्वर मेल्ट हो जाए, की लॉगर को एनेबल करना है। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन कॉन्फ़िगर। एंड लास्ट ऑप्शन इज EXE आइकन्स। इवन आप अपनी मर्जी से आइकन भी लगा सकते हो, लाइक एन EXE, एन TXT, ओपन फोल्डर, रैर फाइल, JPG, BMP और कैस्पर्स की, राइट। यह आपकी मर्जी है कि आप कौन सा आइकन यहां से चूज करना चाहते हो। उसके अलावा अगर आपको इनमें से कोई आइकन पसंद नहीं आ रहा है, डू नॉट वरी अबाउट दिस, क्लिक ऑन चूज आइकन एंड गिव द पाथ ऑफ द आइकन। जहां कहीं भी आपके सिस्टम में वो आइकन रखा होगा जिसका आप पाथ देना चाहते हो। एंड ये सब कुछ करने के बाद क्लिक ऑन सेव सर्वर। फ्रेंड्स, इससे होगा क्या, I got a message, the server has been saved with your settings in the current directory and is ready for running or binding, right? और अगर आप ध्यान से देखें तो मेरी ही डेस्कटॉप पर एक आइकन आ चुका है, having Kaspersky का ही एंटीवायरस आइकन with the name of server. No doubt I can rename it. I'll give it a good name like this, ताकि कुछ ओरिजिनल जैसा लगे। अब आपको करना क्या है, एनी हाउ आपको अपना ये एंटीवायरस या आइकन की फाइल विक्टिम को गिफ्ट करके आनी है। इट कुड बी एनी हाउ। नाउ लेट अस अज्यूम कि ये विक्टिम है एज ऑलवेज, राइट। लेट मी क्लीन अप माय डेस्कटॉप फर्स्ट। All right, now Hayek is in use. It is a reason we are not able to delete it, so do not worry about this. I'll let you know कि सब कुछ कैसे डिलीट करना है। Let it be here. And now let's move ahead कि हम ट्रोजन यूज कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पर दो मशीन्स हैं। One is a virtual machine of Windows XP. Another is a main machine of Windows 7. तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ how can you control this virtual machine from your main machine by using the application of Trojans.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही आपका वो सर्वर है जो आपको यहां पर यूज करना है और यही सर्वर आपको विक्टिम को गिफ्ट करना है. लेट अस से मैंने ये सर्वर विक्टिम को पेन ड्राइव में गिफ्ट कर दिया, राइट. तो दिस इज योर सर्वर फाइल. एनी हाउ वो सर्वर मैंने विक्टिम को गिफ्ट कर दिया एंड यू कैन सी ऑन द विक्टिम्स कंप्यूटर देयर इज अ आइकन ऑफ Kaspersky पैच 2013 ऑन डेस्कटॉप, राइट. द मोमेंट विक्टिम ने उस आइकन पर क्लिक किया, अपने उस एंटीवायरस को इंस्टॉल करने के लिए, उस पैच को एनेबल करने के लिए, आप लोग ध्यान से देखना क्या होगा. द मोमेंट उसने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करते ही वो गायब हो गया. वो गायब हो गया. उसका फोन आया मेरे पास, यार वो तो गायब हो गया. मैंने कहा कोई बात नहीं, दोबारा ले लियो. पर उसके सिस्टम में ट्रोजन इंस्टॉल हो चुका है, मुझे इस बात का पता चल चुका है. तो यहां पर इस सर्वर का काम खत्म हो चुका है. जो काम हमें सर्वर से करवाना था वो हम कर चुके हैं. तो लेट मी डिलीट दिस सर्वर फ्रॉम माय मेन मशीन. अब काम स्टार्ट होता है अपने इस क्लाइंट का. इस क्लाइंट में यहां पर एक ऑप्शन है दैट इज स्टार्ट लिसनिंग. आई विल क्लिक ऑन स्टार्ट लिसनिंग. आप लोग ध्यान से देखना, स्टार्ट लिसनिंग में क्लिक करने के बाद होपफुली थोड़ी देर में सिस्टम ट्रे के पास एक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए अपने आप से, ए न्यू विक्टिम इज अवेलेबल. सो लेट्स हैव ए लुक कि वो नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता. देयर वुड बी ए नोटिफिकेशन लाइक दिस, a new victim is available, that is Sulabh on this IP address, right. That is something called as reverse connection. and guys आप यहां पर देख सकते हो कि वो ऑटोमेटिकली यहां पर आकर ऐड हो चुके हैं. दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज रिवर्स कनेक्शन. आपने अगर ध्यान से देखा हो तो यहां पर हुआ क्या, मैं रिपीट करता हूं. मैंने यहां पर विक्टिम को वो एंटीवायरस की फाइल गिफ्ट की, उसने एग्जीक्यूट किया. एग्जीक्यूट करते ही वो वहां से गायब हो गई और ऑटोमेटिकली उसके सिस्टम से एक नोटिफिकेशन जनरेट हुआ और मेरी मेन मशीन के पास एक पॉपअप आ गया, अ न्यू विक्टिम इज अवेलेबल. और अगर आप अभी यहां पर स्टेटस चेक करते हो, इट इज शोइंग यूर स्टेटस डिसकनेक्टेड. बट द मोमेंट मैं यहां पर इस आइकन पर क्लिक करूंगा, ये आइकन यहां से गायब हो जाएगा और नीचे स्टेटस आएगा कनेक्टेड. आप लोग ध्यान से देखना क्या होगा. क्लिक ऑन दिस, आइकन गायब और नीचे आ गया कनेक्टेड. अब मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस है जो मैं यहां पर यूज कर सकता हूं. लाइक फर्स्ट ऑप्शन इज मैनेजर्स, और मैनेजर में पहला ऑप्शन है फाइल्स का. द मोमेंट मैंने यहां पर क्लिक किया फाइल्स पर, आई गॉट ए फाइल मैनेजर. क्लिक ऑन फाइंड ड्राइव्स और मेरे पास यहां पर सी ड्राइव आ गई. ये सी ड्राइव किसकी होगी, विक्टिम मशीन की. एग्जैक्टली आप देख सकते हो विक्टिम मशीन में जो भी फाइल्स हैं, जो भी फोल्डर्स हैं, वो सारे आपके सामने हैं. लेट्स हैव अ लुक. यहां पर एक फाइल रखी हुई है, कायरन डिजिटल सिक्योरिटीज. इवन आई कैन डाउनलोड दिस फाइल और वो फाइल मेरे डेस्कटॉप पर आकर सेव हो चुकी होगी. सो लेट्स हैव अ लुक कि वो फाइल कहां पर गई है. सी आई गॉट दैट सेम लोगो जो विक्टिम मशीन पर रखा हुआ था, राइट. एंड ये सारी फाइल्स आपकी विक्टिम मशीन पर एग्जिस्ट भी करती है. यू कैन चेक इट आउट. कम टू सी ड्राइव विक्टिम मशीन. जो भी फोल्डर्स है, जो भी फाइल्स हम यहां पर देख रहे हैं, वो सारे फाइल्स से फोल्डर्स यहां पर एग्जिस्ट करते हैं कहीं ना कहीं. और यही रीजन था कि मैं उन्हें देख पा रहा था, एक्सेस कर पा रहा था, इवन डाउनलोड भी कर पा रहा था. इसके साथ में यहां पर और भी काफी अच्छे ऑप्शंस हैं. लेट्स हैव अ लुक हियर. आपने देखा यहां पर एक फाइल थी, कायरन डिजिटल सिक्योरिटीज लोगो. व्हाट इफ आई विल सिलेक्ट दिस फाइल एंड क्लिक ऑन डिलीट फाइल. इट इज आस्किंग आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दैट फाइल. आई विल क्लिक ऑन ओके. वो फाइल यहां से डिलीट हो जाएगी. कोई एरर नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया डिलीट करना है नहीं करना, और वो फाइल वहां से डिलीट हो चुकी है. दैट इज समथिंग डिलीट फाइल. इसके साथ साथ अपलोड फाइल, अगर आप कोई फाइल अपलोड करना चाहते हो, रीनेम फाइल, कोई फाइल को रीनेम करने के लिए, रन फाइल, अगर आप कोई फाइल यहां से रन करवाना चाहते हो. पर कई बार क्या होता है, कुछ फाइल्स जब भी आपकी रन होती हैं वो विजिबल हो जाती हैं कि वो रन हो रही हैं. कोई बात नहीं, उससे अगला ऑप्शन काफी अच्छा है, दैट इज रन हिडन. फाइल एग्जीक्यूट भी हो जाएगी और दिखेगी भी नहीं. नेक्स्ट इज ओपन फाइल, कोई फाइल ओपन करने के लिए. सर्च फाइल, कोई फाइल को सर्च करने के लिए. एट्रीब्यूट्स, अगर आपको किसी फाइल के या फोल्डर के एट्रीब्यूट्स चेंज करने हैं, यू कैन यूज दिस ऑप्शन. देन डिलीट डायरेक्टरी, आपकी डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी जो भी आप सिलेक्ट करोगे. नेक्स्ट इज इरेज ऑल, सब कुछ साफ, वहां पर कुछ भी नहीं बचेगा. द नेक्स्ट ऑप्शन इज हेयर, दैट इज रजिस्ट्री. इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास
विक्टिम की विंडोज रजिस्ट्री का पूरा एक्सेस होगा, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, कोई भी चेंजेस भी यहां से कर सकते हो। द नेक्स्ट ऑप्शन इज हियर दैट इज स्क्रीन, अ वेरी गुड ऑप्शन, यू नो। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके पास विक्टिम मशीन की पूरी स्क्रीन आ जाएगी। आई क्लिक ऑन दिस, क्लिक करते ही यहां पर एक ब्लू स्क्रीन आ चुकी है। आई क्लिक ऑन स्टार्ट, इट इज सेइंग सम स्क्रीनशॉट्स प्लगइन्स आर नॉट अवेलेबल, प्लीज इंस्टॉल इट। आई सेड ओके यस। आई क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्सेस and click on upload. Uploading has been finished और मेरा काम हो चुका है। Now I'll click on start. And friends, आप देख सकते हो कुछ ही देर में आपके पास विक्टिम मशीन का पूरा डेस्कटॉप आ चुका है, पूरा सिस्टम आपके सामने है। आप यहाँ से देख सकते हो विक्टिम क्या काम कर रहा है, कौन कौन सी मूवीज देख रहा है, रात को बैठ के किस किस से चैटिंग कर रहा है, वो सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। इवन वो सारी मूवीज भी साथ साथ आप देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वो मूवी आपने पहले देखी हुई है तो आप यहां से उसके सिस्टम से चेंज भी कर सकते हो, लाइक दिस एग्जैक्टली। मैं कंट्रोल यहां से कर रहा हूं और काम वहां पर भी परफॉर्म हो रहा है। दैट इज समथिंग रिमोट डेस्कटॉप, राइट। आई क्लिक ऑन स्टॉप एंड क्लोज इट। यू नो व्हाट, कि अगला ऑप्शन और भी अच्छा है, दैट इज वेबकैम। आई क्लिक ऑन वेबकैम। द मोमेंट मैं स्टार्ट पर क्लिक करूंगा, विक्टिम का वेबकैम भी ऑन हो जाएगा और मैं देख सकता हूं विक्टिम क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, राइट। सब कुछ मेरे सामने आ जाएगा यहाँ, ये भी मेरे हाथ में है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज हियर दैट इज एप्लीकेशंस। आप देख सकते हो विक्टिम यहाँ पर कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज कर रहा है। नाउ लेट अस अज्यूम कि विक्टिम को पेंटिंग का बहुत शौक है। उसने क्या किया, उसने एमएस पेंट ओपन किया पेंटिंग बनाने के लिए। वो यहां से पेंटिंग बना रहा था, मैं देख रहा था क्या पेंटिंग बना रहा है वो कुछ पेंटिंग बनाने का ट्राई कर रहा था और पता नहीं यहाँ पर क्या बन गया, राइट। मैंने यहाँ पर देखा कि एप्लीकेशन में वो पेंटिंग बना रहा है। मैं स्क्रीन पर देखता रहा कि वो क्या पेंटिंग बना रहा है। मुझे जैसे लगा पेंटिंग पूरी हो चुकी है और वो अब सेव करने वाला है। मेरे पास एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन था, यू नो, किल एप्लीकेशन। आई क्लिक ऑन दिस किल एप्लीकेशन, चल, और वो एप्लीकेशन वहाँ से गायब हो जाएगी। उससे पूछेगा भी नहीं कि सेव करना है नहीं करना, क्लोज करूँ या ना करूँ, एप्लीकेशन एकदम बंद। दैट इज एप्लीकेशंस। देन नेक्स्ट इज प्रोसेस। आप विक्टिम के सारे रनिंग प्रोसेस भी देख सकते हो। देन सर्विसेज, अगर आपको कोई सर्विस ऑन या ऑफ करनी हो। नेक्स्ट ऑप्शन इज क्लिपबोर्ड। इससे क्या होगा, अगर विक्टिम ने यहां पर कोई भी डेटा कॉपी किया हुआ है तो आप उसे देख सकते हो और अल्टर भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज पासवर्ड्स। अगर आपको लगता है कि विक्टिम ने कोई ना कोई पासवर्ड्स अपने सिस्टम में सेव किए हैं और इतना ब्राउजर सेव किए हैं तो आप वो पासवर्ड्स यहां से एक्सेस कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू विंडोज ऑप्शन। ये काफी खतरनाक है, इसे बाद में देखते हैं। कम टू लेमर स्टफ। फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड आइकन्स। उसके आइकन्स गायब हो जाएंगे। लेट अस से आई क्लिक ऑन हाइड आइकन्स, आइकन्स गायब। शो आइकन्स, आइकन्स आ गए। नेक्स्ट इज हाइड ट्रे। उसकी ट्रे वहां से गायब हो जाएगी, लाइक दिस। शो ट्रे, ट्रे आ चुकी है। देन हाइड स्टार्ट, उसका स्टार्ट बटन आप गायब कर सकते हो, लाइक दिस। देन डिसेबल ट्रे, उसकी ट्रे डिसेबल हो जाएगी। नेक्स्ट इज ओपन सीडी, उसका सीडी-रोम ओपन हो जाएगा। और आपको पता होगा कि आपके लैपटॉप में क्लोज सीडी का ऑप्शन काम नहीं करता, पर अगर आपको लगता है कि विक्टिम यहां पर डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो आप खेल सकते हो, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज। द नेक्स्ट इज लॉक माउस, उसका माउस यहां पर लॉक हो जाएगा, वो उसे मूव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज हाइड क्लॉक, उसकी क्लॉक वहां से गायब हो जाएगी। देन स्वैप बट्स मीन्स माउस के बटन्स, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक और राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक। कम टू फन स्टफ। फर्स्ट ऑप्शन इज हियर दैट इज हाइड माउस, उसका माउस वहां से गायब हो जाएगा। नेक्स्ट इज लॉक सीडी, उसके सिस्टम में कोई भी सीडी या डीवीडी रीड नहीं करेगी। अगला ऑप्शन है यहां पर गो टू यूआरएल। आप विक्टिम के सिस्टम में डायरेक्टली कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हो कभी भी, ये भी आपके हाथ में है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज वॉलपेपर। इवन आप विक्टिम के सिस्टम का वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हो किसी भी टाइम। अगला ऑप्शन काफी अच्छा, दैट इज चैट। यू नो व्हाट, आप विक्टिम के साथ फोर्सफुली चैट भी कर सकते हो। अगर वो चैट ना भी करना चाहे उसे फिर भी करनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट यहां पर आपको अटैकर का नेम दिखा रहा है, बाय डिफॉल्ट यहां पर आपको विक्टिम का नाम शो कर रहा है। और इवन आप चैट विंडो का साइज इंक्रीज कर सकते हो टू 100%। एंड आई क्लिक ऑन ओपन चैट। आप लोग ध्यान से देखना, विक्टिम की पूरी स्क्रीन पर एक चैट विंडो आ चुकी है और कहीं पर कोई ऑप्शन नहीं है उसे बंद करने का भी। एंड इफ आई टाइप ए मैसेज हियर, वो मैसेज उसे मिल चुका है।
विक्टिम के पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट रिप्लाई करने के, वो सिर्फ रिप्लाई कर सकता और कुछ नहीं कर सकता। उसने रिप्लाई किया, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, राइट। क्लोज चैट मेरे पास है, वो नहीं कर सकता। मैंने क्लोज चैट किया, वो बंद हो गया, वरना उसे क्लोज भी ना कर पाता। अगला ऑप्शन आपके सामने है यहां पर, दैट इज सर्वर। जो सर्वर हमने अभी तक क्रिएट किया था, अगर आप उस सर्वर को अपडेट करना चाहते हो, क्लिक ऑन अपडेट। क्लोज करना चाहते हो, क्लिक ऑन क्लोज। अगर आप उस सर्वर को परमानेंटली किल करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपका काम कंप्लीट हो चुका है, तो किल सर्वर। अगर आपको उसी सर्वर की इंफॉर्मेशन लेनी है, क्लिक ऑन इन्फो। नाउ कम टू मिसलेनियस। फर्स्ट ऑप्शन इज स्कैनर। अगर आपको उसके सिस्टम को स्कैन करना है, देन मैसेजेस, कोई मैसेजेस सेंड करने हैं। रन एप्लीकेशन, अगर आपको कोई एप्लीकेशन रन करवानी है। नेक्स्ट इज कीलॉगर। यू नो व्हाट कि बीस्ट के अंदर पहले से ही एक इनबिल्ट कीलॉगर है। विक्टिम जो भी टाइप कर रहा था वो सब कुछ आपके सिस्टम में आप कभी भी ग्रैब कर सकते हो। अगला ऑप्शन इज सिस्टम टाइम। यहां पर क्लिक करने के बाद आप विक्टिम के सिस्टम का डेट टाइम चेंज कर सकते हो, वैसे उसका टाइम खराब चल रहा है। कम टू बी स्टफ अबाउट क्रेडिट, हेल्प एंड ऑल, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर के इंफॉर्मेशन हैं, उसी के ऑप्शंस हैं। ना कम टू विंडोज ऑप्शन। फर्स्ट इज हाइड ऑल, सब कुछ गायब। नेक्स्ट इज क्रैश, उसकी विंडोज क्रैश हो जाएगी। नेक्स्ट इज पावर ऑफ, रीबूट, शट डाउन, लॉग ऑफ। फ्रेंड्स, ये सारे ऑप्शन काफी अच्छे से काम करते हैं, बट मेक श्योर दैट अगर आपने इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक किया, आपका कनेक्शन भी लॉस्ट हो जाएगा और मशीन भी रिबूट हो जाएगी। लेट्स हैव अ लुक। आई क्लिक ऑन रिबूट। कनेक्शन आपका लॉस्ट हो चुका है और काफी क्विकली आपकी विंडोज एक्सपी वर्चुअल मशीन रिबूट हो रही है। बट बेस्ट पार्ट इज मशीन अपने आप से शट डाउन हो रही है, आप देख सकते हो। मशीन अपने आप से ऑन भी हो रही है और ऑटोमेटिकली ऑन होते ही वापस से वो नेटवर्क पर आएगी। द मोमेंट वो नेटवर्क पर आएगी तो वापस से ऑटोमेटिकली आपको एक रिवर्स कनेक्शन फिर से दे देगी। लेट्स हैव अ लुक। लेट अस वेट फॉर सम टाइम। मशीन आपकी रिबूट कर रही है। अगेन गो टू द वेलकम स्क्रीन। आई गो टू द डेस्कटॉप और आप लोग ध्यान से देखना, अगेन आई गो टू द सेम विक्टिम और वापस से वो यहां पर आकर ऐड हो चुका है। वापस से डबल क्लिक किया, कनेक्ट हो गया एंड क्लिक ऑन रिबूट, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड एज reverse connection and this is a working of Trojans. Now let's have a look a concept of binders. तो जो बाइंडर मैं आपको यहां पर डेमोस्ट्रेट करने वाला हूं, that binder name is micro joiner. Let me repeat it कि बाइंडर आपका काम क्या करता है। बाइंडर्स आर द सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से आप मल्टीपल फाइल्स को बाइंड कर सकते हो एंड यू कैन मेक अ सिंगल फाइल एंड द मोमेंट अगर आपने उसे एक बार एग्जीक्यूट किया, आपकी वो सारी एप्लीकेशंस एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगी जो जो आपने बाइंड की थी बाय यूजिंग बाइंडर्स। एंड इट कैन बी वेरी हेल्पफुल इन केस ऑफ ट्रोजन्स। आप अपना ट्रोजन का सर्वर किसी भी फाइल के साथ बाइंड कर सकते हो। दैट कुड बी एन इमेज फाइल, एनी ट्रस्टेड एप्लीकेशन। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल हियर विद द हेल्प ऑफ माइक्रो जॉइनर। ऑन माय डेस्कटॉप देयर इज अ सॉफ्टवेयर माइक्रो जॉइनर इटसेल्फ। इट इज अ प्लग एंड प्ले सॉफ्टवेयर, देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल इट। और जो भी फाइल्स आपको बाइंड करनी है वो सारी फाइल्स आपको यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। नाउ लेट अस अज्यूम मेरे पास इस मशीन में एक exe फाइल है, माइक्रो जॉइनर इटसेल्फ, ड्रैग एंड ड्रॉप इनसाइड इट लाइक दिस। लेट अस अज्यूम एक टेक्स्ट फाइल है, ड्रैग एंड ड्रॉप लाइक दिस। एक इमेज फाइल है, ड्रैग एंड ड्रॉप लाइक दिस। So now you can have a look here. I'm having here three files. One is exe, another is txt, and last one is jpg. The moment I'll click on create, आप देखना यहाँ पर पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है and I got a message file processed और आपके सामने यहाँ पर एक नई फाइल बन चुकी है with the name of joint. Now I believe you must be knowing how to rename it and how to change the icon of this file. Yes, but the moment आपने इस फाइल को एग्जीक्यूट किया, आप ध्यान से देखना क्या होगा। आपकी तीनों फाइल्स एक साथ ऑन ए सिंगल एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेट अस सी। माइक्रो जॉइनर, योर इमेज फाइल एंड योर टेक्स्ट फाइल, वो सारी फाइल्स आपकी एक साथ एग्जीक्यूट हो चुकी हैं।
तो फ्रेंड्स, इट वाज अ प्रोसीजर ऑफ माइक्रो जॉइनर टू बाइंड मल्टीपल फाइल्स एंड टू क्रिएट ए सिंगल फाइल. नाउ लेट्स मूव अहेड टू अनदर एग्जांपल, दैट इज डिटेक्शन एंड रिमूवल ऑफ मॉलवेयर्स. अगर आपके सिस्टम में कुछ ऐसे मॉलवेयर्स आ जाते हैं तो आप उन्हें कैसे डिटेक्ट करोगे या कैसे उन्हें रिमूव करोगे? लेट अस सी एन एग्जांपल. You have to check all the processes which are running in the computer and you can use the task manager for this. I believe कि आप सभी को पता होगा task manager क्या होता है. This is task manager. पर क्या आप सभी को समझ आता है कि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस क्यों चल रहा है, किसका क्या मतलब है? नहीं आता. ये आप सभी को अच्छे समझ नहीं आता और यही रीज़न है कि हम यहाँ पर कुछ और सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक प्रोसेस एक्सप्लोरर, प्रोसेस मॉनिटर और TCP व्यू. कैसे यूज करना है, लेट अस एन एग्जांपल. पर उससे पहले हम यहां पर देखते हैं कि आपको कैसे प्रोसेस एक्सप्लोरर को यूज करना है. बेसिकली प्रोसेस एक्सप्लोरर डिवाइड्स ऑल प्रोसेस इनटू लिस्ट. सबसे पहली लिस्ट आती है आपके सिस्टम प्रोसेस एंड सेकंड इज यूजर्स प्रोसेस. अब सिस्टम प्रोसेस वो लिस्ट कंटेन करता है जो जो प्रोसेस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने खुद से चलाए हैं. पर यूजर प्रोसेस में वो सारे के सारे प्रोसेस होते हैं जो आप खुद से अपने एंड से इनिशिएट करते हो, राइट? तो गाइज आपका प्रोसेस एक्सप्लोरर करता क्या है, आपके दोनों प्रोसेस को डिफरेंशिएट करता है कि दीज आर सिस्टम प्रोसेस, दीज आर यूजर्स के प्रोसेस. अब आपका काम यहां पर सिर्फ इतना सा रहेगा, आपको यूजर्स प्रोसेस को एनालाइज करना है, देखना है कि कौन कौन से प्रोसेस आपने चलाए हैं. बट अगर आपको फिर भी लगता है कि यहां पर कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो अनवांटेड है, जो आपने नहीं चलाए या जो नहीं चलने चाहिए, यू नीड टू किल दैट प्रोसेस. एंड आई बिलीव कि आपको पता होगा कि आपके सारे के सारे यूजर प्रोसेस एक्सप्लोरर एक्सी के अंडर आते हैं, राइट? अब यहां पर कौन से स्टेप्स रहेंगे काम करने के, एक बार वो देखते हैं. सबसे पहले एग्जीक्यूट प्रोसेस एक्सप्लोरर. देन लुक फॉर द प्रोसेस अंडर explorer.exe. check each process one by one. Then look for the software name against each process. Right click on the process which you don't recognize and get the location of the exe file of application. Then right click on the process and kill process tree ताकि उसका child और parent दोनों files kill हो जाए. Then go to the location of file and delete it, and then you can say you are safe from malwares. Now let's have a look practically कि practically ये सब काम हम कैसे करते हैं. So now let me find out process explorer again, and it is in a system only, right? So this is your process explorer. कैसे मैं यूज करने वाला हूं एक बार ये देखते हैं. I'll execute it. क्लिक ऑन अग्री. अग्री करते ही आप देख सकते हो कि यहां पर मेरे पास काफी सारे प्रोसेस आ चुके हैं. और अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है. ऑन द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर यू कैन सी सिस्टम आइडल प्रोसेस और यहां पर एक माइनस साइन लगा हुआ है. अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये नीचे वाले ट्री को मिनिमाइज कर देगा लाइक दिस, और इसके बाद बैलेंस रह जाएंगे मेरे पास सारे के सारे यूजर्स प्रोसेस, राइट? क्योंकि यूजर्स प्रोसेस आपके सारे एक्सप्लोरर.exe के अंडर ही आते हैं. साथ में आपका यहां पर लगा हुआ डिस्क्रिप्शन एंड कंपनी नेम. आपको यहां पर सभी प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन और कंपनी नेम भी शो करेगा. एंड फ्रेंड्स 90% केसेस में आपके मैलिशियस सॉफ्टवेयर का कोई भी डिस्क्रिप्शन और कंपनी नेम नहीं होता, बट ओनली इन 90% केस. तो आपको करना क्या है, यहां पर आपको वन बाय वन सारे प्रोसेस को एनालाइज करना है. अगर आपको लगता है कि वो ट्रस्टेड है तो लीव इट, एल्स किल दैट प्रोसेस. तो अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहला प्रोसेस है VMware ट्रे, देन VMware यूजर, description is VMware tools and company is VMware. Now I'm using a virtual machine and the software that I'm using to create virtual machine is VMware. So now these processes are trusted. I'll leave it right now. पर अगला प्रोसेस आपके सामने आ रहा है यहाँ पर CLE.exe, no description and no company name. और इवन मैं यहाँ पर कोई ऐसा प्रोसेस यूज भी नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी मेरे सिस्टम में चल रहा है. क्यों चल रहा है? नहीं चलना चाहिए. So now what I'll do, I'll right click on this process और एक ऑप्शन है किल प्रोसेस एंड किल प्रोसेस ट्री. I'll click on किल प्रोसेस ट्री उसके चाइल्ड और पेरेंट्स को किल करने के लिए. पर यहां पर एक फाइट हो रहा है. अगर आपने अभी इसको किल कर दिया, द मोमेंट आई विल रीसेट दिस मशीन, रिस्टार्ट करने के बाद वापस से प्रोसेस अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट?
नाउ व्हाट आई वांट टू किल द सेम प्रोसेस परमानेंटली, और परमानेंट किल करने के लिए मुझे इसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने वाली वो कौन सी फाइल है जो इसे एग्जीक्यूट कर रही है। और लोकेशन के लिए मैं यहां पर क्लिक नहीं कर रहा, आई क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करने के बाद मेरे पास उस फाइल की लोकेशन आ जाएगी जहां कहीं भी ये रखी होगी, एंड आई गॉट द लोकेशन। नाउ लेट्स कम टू दिस लोकेशन, देखते हैं लोकेशन पर ये फाइल कहां पर रखी हुई है। कम टू सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, CLE, एंड दिस इज CLE.exe। अब फ्रेंड्स आपकी यही वो फाइल है जो आपकी रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं एनी हाउ इसको डिलीट कर दूं, काम हो जाएगा हमारा? एग्जैक्टली हो जाएगा। तो ट्राई टू डिलीट इट, but I got an error message, access is denied because file is currently in use। however file is running in your machine, तो आप उसे डिलीट नहीं कर पाओगे। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? you need to kill that process, click on kill process, click on yes, click on ok। वो प्रोसेस आपका अभी के लिए बंद हो चुका है, पर अगर आपको उसको परमानेंटली किल करना है, come to the location and delete this file। इस बार वो डिलीट हो जाएगी, हो चुकी है, and that is a permanent removal of any virus or any spyware। let's move ahead, next is here process explorer, the software itself जिसके अंदर हम सारे के सारे प्रोसेस देख रहे हैं। so is it trusted? yes it is trusted। इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। next is svc host.exe, यहाँ पर दो प्रोसेस चल रहे हैं, एंड गाइज आपकी यही वो प्रोसेस है जो आपके ट्रोजन्स के लिए इनिशिएट हुआ था। मैं बीस्ट यहाँ पर यूज कर रहा था रिमोटली मशीन को कंट्रोल करने के लिए, और यही वो प्रोसेस है जो यहाँ पर यूज किया जा रहा है इस काम को करने के लिए। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड द लोकेशन फर्स्ट, कम टू प्रॉपर्टीज, वी गॉट द लोकेशन, कम टू दिस लोकेशन, सी ड्राइव, विंडोज, एंड फाइल नेम वाज svc host.exe। यही वो फाइल है। अगर हम इसको डिलीट करते हैं, ये डिलीट नहीं होगी, रीजन इज अगेन सेम, फाइल इज करंटली इन यूज। तो करना क्या होगा हमें? किल दिस प्रोसेस, क्लिक ऑन यस। आपका एक प्रोसेस आप किल कर चुके हो, पर दूसरा अभी भी बाकी है। नाउ राइट क्लिक ऑन दिस एंड किल प्रोसेस ट्री, अगेन क्लिक ऑन यस, एंड दिस टाइम द मोमेंट आई विल कम टू दिस लोकेशन, ये फाइल आपकी यहां से डिलीट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, दैट इज अ मैनुअल वे to delete any virus, keylogger or trojan। so it was a way how to remove malwares from your machine, right? And it was about trojans part and malware part।